Hello, Jamshedpur. This is your host from Treasure Hunt JSR, and I've got two major surprises for you guys today. First, definitely being my identity revealed. My name is Hermeet Obroy, and I have been hosting the hunts from the past few months now. And the second major surprise is we would be shooting our very first podcast with even more special person, you know, just to give you more information about it. He was known as the super cop of Jamshedpur. Not just that, he's an MBBS. On top of that, he also served as an IPS, and now he plays a very active role in politics. So, guys, I'm sure you would have guessed it by now. It is none other than our very own and our favorite for sure, Dr. Ajay Kumar. So, joining us today is my personal favorite, Dr. Ajay Kumar. Hi, sir. Welcome to our podcast. Hello, how are you? Great, sir. So, it has been a pleasure, for having you in front of me. That is something that I've always thought about. It's like a dream come true, sitting just next to my idol. Thank you so much. So, It's very flattering. thank you, sir. So you have had a very long journey, as far as I know about you, probably you started off as a doctor, right? Later on, you were an IPS officer, and then you went on to study further in XLRI and joined Tata Steel, right? So not just me, but then our audience have a question: what made you join politics, sir? So, the greatest leverage of change the, is politics fundamentally. Unfortunately, like if you're a civil servant, there's a limited role in which you can do it. Absolutely. Well, if you're in the private sector, you contribute to the economy definitely, but politics has a very long-term impact. Take an example. If you decide to build roads across the state of Jharkhand, just as a simple example, you change the economy of the state. If you decide to build or allow central universities, state universities, private universities, and give them a good environment to set it up, you'll create a huge opportunity for children not only to study. And I can give a good example of that. So when Jamshedpur was a town in 1970s, there was no Gurgaon, there was no Noida. Absolutely. Pune was a small cantonment town. Right. What made Jamshedpur go back to becoming smaller and smaller? And what made Noida, Gurgaon, and Pune and Bangalore to become so big is something which everybody should ask, but nobody's asking. Yes. And the root cause is the city of Chennai has got 600 odd engineering colleges. It's got around 80 to 100, I believe, med schools. So when you created an education hub in Chennai, then automatically when the companies set up businesses like TCS, they had good manpower. Absolutely. Whereas in Jamshedpur, there is no higher institute in Jharkhand, but Jamshedpur in particular. So all kids go out and they continue, city kept deteriorating. And since we're in Jamshedpur, when I was a superintendent of police and now, I don't know, you will, I'm sure, will notice, it's become a city where there's old people. Right. Absolutely. And then there's only contract labors. Yes. That's it. Now, it's scary. It is. But in 1990s, Jamshedpur had over 1 lakh Tata Steel workers, over 24,000 in Tata Motors. Today, the number of Tata Steel workers is down to 17,000. Oh, okay. And Tata Motors is permanent employees less than 6,000. So, one is that kind of jobs have gone down, which was itself not a great set of jobs because they were decent jobs for sure. But they were not jobs which were adding to, what you call
knowledge economy at all. They were hardcore manufacturing, physical work. So politics can change that. Politics can get universities. All politicians by and large put the cart before the horse. They say bring TCS to Jamshedpur. You cannot bring TCS to Jamshedpur because if TCS has to hire people, they'll have to hire from Bangalore and Chennai, and they are not going to come to Jamshedpur. Correct. So this inability to understand what drives the business environment. So you need good politicians. Absolutely. So that's one of the reasons I thought you can have a huge impact on the policy making. You can raise issues which are there. We continuously raise issues every day in and out as a person of the political party. And that has a huge lasting effect. Take land acquisition bill. The previous government in Jharkhand wanted to pass on a very, our view of a bad, bordering to evil land acquisition bill. They could take any Adivasi land without the consent of the Gram Sabha. That means no land was safe. We opposed it. JMM and Congress opposed it. They were able to stop it. So, I think that's what politics are about. Try to get the right to education, the right to, whatever is necessary. Because as of now, sir, I'm just representing the youth. जितने भी youth हैं, ठीक है, को represent कर रहा हूँ, sir. ठीक है. ठीक है. और probably आपके पास आने से पहले, I did run a survey, जिस पर मैंने काफी उसे क्वेश्चन किए थे कि यार क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. तो मेरे पास 4-5 ऐसे पॉइंटर्स आए थे सर जो उन्होंने डिस्कस किए थे. फर्स्ट वन जो आपने ऑलरेडी कवर कर दिया सर, दैट वाज राइट टू एजुकेशन. बिकॉज यहाँ पे क्या है सर, स्कूलिंग तक इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट स्कूलिंग के बाद हम देखते हैं कि कई लोग दिल्ली जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, बिकॉज द कॉलेजेस आर नॉट एज एडवांस्ड एज व्हाट वी गेट इन अदर पार्ट ऑफ Absolutely. उसके लिए सर व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट. See, ये जो मणिपाल मेडिकल कॉलेज है काफी समय तक पेंडिंग था. फिर हम जब MP थे तो हम सफल हुए उसको लाने में. और वेरी इंटरेस्टिंग रूल है, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की दूरी जो है वो 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती. राइट. ये जहाँ पर मणिपाल कॉलेज है और TMH है वो 10 से ज्यादा था. ओके. तो परमिशन इसी बेसिस पर नहीं मिल रहा था. फिर हमने हेल्थ सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात हुई. फिर ट्राइबल स्टेट्स के लिए एक्सेप्शन किया गया, बिकॉज झारखंड ट्राइबल स्टेट है. उसके चलते मेडिकल कॉलेज आ गई. बट एक मेडिकल कॉलेज मणिपाल ने हजारों को नौकरी दे दिया पारेडी. पर जब तक मणिपाल जैसे मेडिकल स्कूल्स 100-200 नहीं होंगे जमशेदपुर और कोलान में, आप जमशेदपुर शहर कोलान की आर्थिक स्थिति नहीं बदल पाओगे. और जब आप 150-200 मेडिकल स्कूल्स खोलेंगे, फिर आप पूरा हॉस्पिटल जैसे संस्थान बनेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स मिल जाएंगे. तो इसका लिंकेज इन लोगों को कैसे समझाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लिंकेज यही है मेडिकल हब बनने के लिए. सो माय थिंग इज टू गेट, गवर्नमेंट के लिमिटेशंस है, बट गवर्नमेंट को आउटस्टैंडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो एनकरेज कर ले. और फीस में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए, जो क्योंकि आप जमीन दोगे तो वो फीस स्ट्रक्चर में एडजस्टमेंट कर सकते हैं. लेकिन प्राइवेट मेडिकल स्कूल है, प्राइवेट कॉलेजेस सबके सैलरी लेवल से बाहर. जमशेदपुर में भी में तो ये समस्या और बड़ी इसलिए है, 80% जमशेदपुर ठेकेदार मजदूर है. जी सर. तो आप लैंड देंगे और स्कूल फीस कम कर सकते हैं. Right. और बाहर वाले स्टेट को सब कॉम्बिनेशन बहुत होंगे. हमारा पहला गोल होगा MIT, मणिपाल, सिम्बायोसिस. ये सब इंस्टीट्यूशंस अगर आ जाए जमशेदपुर, तो पहला फेज में इकोनॉमी बदल जाएगी, क्योंकि सप्लाई खाना वाना सप्लाई करना पड़ेगा. और मे बी 10 years later
10 साल बाद आपके TCS VCS यही आने लगे, बट लॉन्ग प्रोसेस है। बट वो प्रोसेस में हर स्टेप में सिटी का ग्रोथ हो जाएगा, शहर का ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज सेटअप करोगे 15-20, जैसे सिम्बायोसिस है, अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मणिपाल, इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ शहर की अर्थव्यवस्था एकदम बदल जाएगी। Yes. And this was, something that we wanted to discuss as well. क्योंकि एक तो उन्होंने डेफिनेटली एजुकेशन के बारे में पूछा था, दूसरा सर हेल्थ केयर के बारे में, विच वी ऑलमोस्ट कवर्ड, बट मोर और लेस सर आई स्टिल फील कि हमारे यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स आज भी लोग MGM जाने से डरते हैं. Correct. Okay. I have personally gone through this. I'll just share my personal experience. My dad, okay, he recently got operated 10 दिन पहले. Okay. So probably the only option that we have here, which we can trust, is PMH. Right. And being someone who comes down from a middle class family, sir, मैं खुद MGM ले जाने का रिस्क नहीं लूंगा. Definitely, we've seen improvement. Okay. जब से probably बना गुप्ता सर जी आए हैं, तो हमने improvement देखी है MGM में, but it has still not reached the mark. Okay, because I am personally, basically from Delhi. Okay, so I have been to a lot of government hospitals in Delhi as well. तो वहाँ पे सर it's not just a hospital, when you walk in, you're not afraid. In fact, you're confident कि यार यहाँ पे इतने अच्छे doctors हैं, and my dad would come back, healthy. Okay. But honestly, इस बार मुझे खुद लगा था सर कि I cannot take the risk of taking him to MGM. And being a non-employee, sir, okay, now taking him to TMH wasn't budget friendly also. Correct. Okay. It is pretty expensive. Very expensive. Okay. And on top of that, sir, employees को बहुत से benefits मिलते हैं. Okay. But हमारे जैसे छोटे businessmen like my dad is, okay, उनके लिए एक छोटे से operation के लिए 2.5-3 लाख रुपए निकालना at a moment, मुश्किल, it is very difficult. I understand, there are different policies going on like Ayushman and all healthcare policies, but sir, उसमें भी not everyone is entitled to take it. Correct. Right. So, मेरा personally, opinion, yeah, I would say कि, what people would want more are good hospitals to be established here. As you correctly mentioned, कि universities आएंगी, so definitely, there'll be a better scope, right? And this is what we expect in Jamshedpur as well. सर मैं दिल्ली से आया, ओके, मैंने थोड़ा टाइम यहाँ स्टडीज़ की, बट आई स्टेप्ड आउट ऑफ जमशेदपुर टू परस्यू माई स्टडीज़ फर्दर इन दिल्ली. ओके, उसके बाद मैं फिर वापस आया, क्योंकि सर मैं भी एक आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो खुद यूथ में ना एक जज्बा लाना चाहता है. मैंने देखा है सर कि यहाँ से लोग 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार की नौकरी के लिए कैलकाटा तक चले जाते हैं. Correct. ओके, एंड दे end up paying half of what they earn as their rent, and that does no good to them. Correct. Okay, यही सोच के साथ मैंने भी अपना एक छोटा सा स्टार्टअप चालू किया था जमशेदपुर में, where I had a thought कि I can employ people in जमशेदपुर by providing the same salary. और सर, अगर आप किसी भी मेजर सिटी में जाओ, अगर आप 10,000 उन्हें ऑफर करोगे तो कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, बट यहाँ पे अगर हम 10,000 भी ऑफर कर रहे हैं तो लोग भागते हुए आ रहे हैं, because there's a lot of unemployment. Okay, so coming to our next point, which is unemployment, right? So probably what is the future of youth in Jamshedpur, sir? See, one thing before that, medical college. एक प्रॉब्लम क्या है कि जमशेदपुर में एवरेज 80% कॉन्ट्रैक्ट लेबर. हाँ जी, ये मैक्स वैक्स आएंगे तो और भी हालत खराब हो जाएगी. एब्सोल्युटली. जब तक आप सरकारी सिस्टम को सुधारोगे नहीं, राइट, जमशेदपुर के 80% बेचारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे. तो MGM को सुधारना कोई चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, क्योंकि जैसे टेक मणिपाल, मैक्स, फोर्टिस, वो तो TMH से ज्यादा होगा, और जमशेदपुर में वो पेइंग कैपेसिटी नहीं है. इनफैक्ट मेडिका ओपन हुआ था सर, बंद हो गई, बट दे चोज टू बंद हो गई. शट इट डाउन. तो मेरा यही कहना है कि ये सब हमको सरकारी, और इस देश के लिए 90% के लिए सरकारी हॉस्पिटल को बनाना, अच्छा बढ़िया बनाना आवश्यक. Absolutely. So then I'm with you. We must improve MGM immediately. Right. On unemployment, if Tata Steel takes over cable in their expansion
and wins the case quickly, अगर जल्दी से केस जीतते हैं, तो मुझे लगता है कि 15-20 हजार लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। अगर टाटा मोटर्स 6,000 लोगों को परमानेंट करके पूरा टाउनशिप को चला रहा है, अगर टाटा स्टील एक्सपेंशन कलिंगनगर में इतना नहीं करके यहाँ पर क्या है, तो 30,000 लोग होने से एक भी नहीं टाटा मोटर्स खुल जाएगा एब्सोल्युटली इकोसिस्टम में। लेकिन हम तो बोल रहे हैं यूनिवर्सिटीज खोलिए नर्सिंग का, इट इज इम्पोर्टेंट यस उसमें एम्प्लॉयमेंट वैसे ही हो जाएंगे। झारखंड में दो ही चीज कर सकते हैं, एक तो नॉलेज आईटी आप व्हाटएवर यू कॉल इट, और टूरिज्म। अगर ये दो चीज करेंगे ना, जमशेदपुर का झारखंड का इकोनॉमी बदल जाएगी। एब्सोल्युटली और टूरिज्म के लिए सर बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं ओके बट इट्स जस्ट दैट बंदों को अवेयरनेस नहीं है पीपल आर नॉट अवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यस टू बी जैसे दलमाल जाने के लिए रोड जो है, यस अगर आप बढ़िया से रोड बनाएंगे, ऊपर बढ़िया से फैसिलिटी बनाएंगे, कौन नहीं, हर आदमी जमशेदपुर से जाएगा। absolutely I've been in Jamshedpur over 10 years And you know, so there but I've not exactly. so yes definitely tourism would play an important part I guess okay now thank you so much sir that was more or less the information that I was looking for but moving forward sir you were known as the super cop of Jamshedpur right Yes. और मुझे लगता है सर कि अभी दोबारा आपकी बहुत जरूरत है every now and then what I have been noticing is a lot of crime that has been increasing कभी यहाँ मानगो में शूट आउट हो रहा है कभी कहाँ हो रहा है people are not afraid of cops anymore right they are taking them for granted यार पकड़े जाएंगे हम छूट जाएंगे right so we need someone like you who has that reputation कि बंदे आपसे डर के भागते थे एक टाइम पे so I'm sure you would have that impact and क्राइम को कैसे कम कर सकते हैं सर हमारी टाउन एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, लाइटिंग। राइट यस जमशेदपुर में गलियां जो बहुत डार्क है, टेक एग्जांपल, ये घर के सामने रोड लेन है, Yeah. अगर आप स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे तो वैसे ही एक तो लाइट रहने से क्या है ना, क्राइम करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई देख लेगा। तो जमशेदपुर में स्ट्रीट लाइटिंग बहुत अभी भी बहुत उचित नहीं है। दूसरा है सीसीटीवी, बट सरकार के द्वारा, दुकानदार के द्वारा नहीं। एब्सोल्युटली आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली कि सर बेशक हम लोग माने जाते हैं वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज राइट बट एज इफ नाउ इफ यू पर्सनली आस्क मी आई वुड नॉट कंसीडर जमशेदपुर एज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी राइट बिकॉज यहाँ पे सर हमारे पास एक्सेस ही नहीं है व्हेन इट कम्स टू सीसीटीवी पीपल वुड बी अफ्रेड टू डू एनी क्राइम लेकिन यहाँ पे सीसीटीवी एक्सेस भी नहीं है और जहाँ पे है आई डोंट थिंक दैट्स इवन ऑपरेशनल ये प्राइवेट सेक्टर ही करता है। सो लेकिन एक चीज जरूर है, मैंने नोटिस किया कि पुलिस के ऊपर भी लगाम चाहिए 100% सर जैसे तो थाना के सामने, क्योंकि क्या है ना, पुलिस क्या कर रही है आजकल, सीरियस सेक्शंस को सिंपल क्राइम के लिए लगा रही है। ये बच्चे लोग को जेल भेज रहे हैं और बच्चे लोग को जेल भेजने से क्या हो रहा है, दे कम आउट एज क्योंकि जेल आना फिनिशिंग स्कूल है क्राइम के लिए। तो जो बच्चा अपराध नहीं कर रहा था पहले या मामूली कर रहा था, वो शातिर बन जाता है जेल जाने के बाद। तो एक तो सीसीटीवी, एक तो पुलिस के ऊपर निगरानी, एक लाइटिंग। और सर हम पुलिस को ज्यादातर देखते हैं फेस्टिवल्स के आसपास राइट मतलब जितनी फोर्स यूज होती है आज की डेट में चालान काटने के लिए शायद उतनी अगर सिक्योरिटी के लिए यूज हो देन प्रोबेबली every single girl sitting residing in Jamshedpur would feel safe और मैं सर आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ अपने एक एम्प्लॉय का it happened very recently wherein she was just walking through a drunk person came right slapped her okay abused her and went when she shouted so again the reason is no lighting at all so देखिए भारत में प्रॉब्लम क्या है ना, एक लंबी चौड़ी एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा, बहुत संक्षेप में बताता हूँ। पुलिस जो है वो प्रोफेशनल नहीं है, उनके तरीके प्रोफेशनल नहीं है, फिजिकल एविडेंसेस नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट लेते हैं। जब तक
और पुलिस का क्या है ना, हर एक सरकार पुलिस को गरीब रखने के चक्कर में, क्योंकि गरीब आदमी जो है ना, जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, गाड़ी नहीं है, दरोगा नहीं है, तो जब तक पुलिस को पहले तो वेल इक्विप करना है, वेल फाइनेंस करना है, तो मुझे लगता है कि 99% पुलिसिंग का जो कमियां है, कुछ हद तक दूर हो सकती है। सर इस पे लास्ट पॉइंट ऐड करूंगा कि मी बीइंग अ सिटीजन, यू नो, आज भी पुलिस स्टेशन जाने से पहले चाहे हम लोग सही भी हों, राइट, तब भी डर लगता है, एकदम राइट. So police station for me is a place. I have traveled across the world, sir. Right. Traveling, I would say not just traveling, but then I have seen in different parts of the world कि पुलिस एक ऐसी जगह है which should be your safest place to go. But यहाँ पे it is a different mentality altogether. यहाँ पे बंदा पुलिस स्टेशन जाने से डरता है. तो ये आई थिंक दैट इज वन मेजर चेंज जो शायद अवेयरनेस हमें लानी पड़ेगी कि दे आर देयर फॉर यू. देखो, एक चीज है, पूरे इंडिया में ये समस्या है, यूपी में आप जा नहीं सकते, क्योंकि पुलिस स्टेशन वर्तमान स्थिति में सचमुच में एक डरावनी जगह है। तो पुलिस को जब तक हम जो है ना, पहले तो सीसीटीवी पुलिस स्टेशन में लगनी चाहिए, राइट. सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही, और चलने चाहिए. लॉकअप में चलने चाहिए, हाजत में चलने चाहिए, और वॉइस रिकॉर्डिंग होनी चाहिए सभी कॉल्स के. राइट. दुनिया के सबसे भ्रष्ट देश जो था एक जमाने में इंग्लैंड था, अब दुनिया का ईमानदार देशों में से गिनी जाती. ऐसा नहीं है कि अंग्रेज लोग इंडियन से ज्यादा ईमानदार है, पर इन्होंने क्या किया, संस्थानें बनाई जो चोर को पकड़ सकते हैं. हम लोग इंडिया में क्या है ना कि भाषण देते हैं लेकिन चोरी सब करते हैं, क्योंकि हमारे ईडी सीबीआई सब खत्म है. हमारे पॉलिसीज करप्शन को बढ़ाती है. जैसे टेंडर, मुझे अगर आपको टेंडर देना तो मैं आपको ये टेंडर डिसाइड कर लूंगा. अमेरिका ने इसको, इंग्लैंड ने सॉल्व कर दिया इसको. टेंडर बनाने का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड है, किसी थर्ड पार्टी को देते हैं, और वो थर्ड पार्टी टेंडर देता है तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो उस पर हो जाता है. इंडिया में क्या है, वो सरकारी ऑफिसर टेंडर बनाएगा, उसको आपको घूस दे करके आप ही का क्वालिफिकेशन का टेंडर हो जाता है. वो सब बहुत, तो सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज इम्पोर्टेंट. Yeah, that is something that needs to be करेक्ट. implemented as soon as possible. सर पॉलिटिक्स की बातें बहुत हो गई. एक चीज, आई एम स्टिल स्टार स्टक, थैंक यू सो मच. you are one person, sir, that I have a small daughter, right? So you are one person that I would like to tell your story to her, because this is what exactly I always wanted to be, but I didn't have the resources though. But आप हम सबके आइडल हो, राइट सर? बट ये पूछना चाहूंगा, आपके आइडल कौन है सर? So two people basically. एक तो नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला इसलिए कि एक आदमी 28 साल जेल में रहता है, और जब बाहर निकलता है तो जिन लोग ने उनको इतना तंग किया ना, उनको 28 साल जेल में रखा, 1 साल नहीं, उनके प्रति कोई नफरत नहीं है. राष्ट्रपति बने. नेल्सन मंडेला तो एक रिमार्केबल व्यक्ति है. आई थिंक द सेकंड आइडियल वाज माय फादर, बिकॉज हमारे पिताजी बहुत गरीब परिवार से है, बहुत भयंकर गरीब परिवार से. उनके सब भाई बहन अनपढ़ थे, किसी तरह से सरकारी स्कूल में गए, सरकारी कॉलेज में गए. उनका सपना था कहीं पर प्यून या क्लर्क बनने के लिए, फिर वो यूपीएससी के एग्जाम दे करके भारतीय विदेश सेवा में चले. तो मुझे लगता है कि, और उनके चलते मुझे पढ़ाई आसानी से हुई. और मेरे पिताजी वैसे व्यक्ति थे, इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ. जैसे रेलवे में ट्रैवल करते हो जी. पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं कि आप 40 किलो ही ले सकते हो. अच्छा. तो एक बार हम जा रहे थे ट्रेन में उनको छोड़ने के लिए, रिटायरमेंट के बाद. वो बैग ले गए, और टीटी के ये जो स्टेशन मैनेजर है ना, उसके पास वेइंग मशीन होता है. ओके. तो उन्होंने बैग डाला, 42 kg था. स्टेशन में मास्टर ने कभी
कोई भी पैसेंजर को वेइंग करते हुए नहीं देखा अपने जिंदगी में। 42 था, यूर अलाउड 40। तो फादर ने कहा कि मैं 2 kg का पैसे दूंगा। मैनेजर बोलते रह गए कि हमको ये 2 kg का पैसे नहीं चाहिए, आप चले जाओ, मेरे पास ये रिसीट नहीं है, किताब नहीं है। बट ही इंसिस्टेड कि हम उस 2 kg का पैसे देंगे। नाउ अगर आप सुनोगे आज के डेट में लगेगा कि पागल है, करेक्ट। बट इन्होंने एक माय फादर एक चीज हमको जरूर, हम लोग को सबको सही, एक तो झूठ कभी नहीं बोलना और गलत पैसे किसी हालत में नहीं कमाना है। एंड इसलिए जब हमने इस्तीफा दिया था भारतीय पुलिस सेवा से, हमारे पास बैंक में 3,000 रुपए था। तो आई थिंक माय फादर फ्रॉम व्हाट ही बायड द डिक्शनरी व्हेन ही वाज, एंड जो आदमी एक ऐसे परिस्थिति से निकला है और अपना पर्सनालिटी, आई मीन I'd say at least education, he kept, वो जिंदगी भर पढ़ाई करते रहे। So I think so Nelson Mandela, my father. Learning never stops. Yeah. Okay. So, sir, this was like quite interesting. Trust me, this is one of the best conversations that I've had in years. Thank you so much. So, ek sir, people are also curious to know, okay, what do you do in your, when you're free? So I'll tell you what happens. So my wife says, except this political period, I'm a very, what do you call, a person of habit. जैसे मैं सुबह बैग बनाता हूँ अच्छा अपना, फिर प्रे में जो किया, दौड़ा, एक्सरसाइज किया, मोटरसाइकिल रोज चलाता हूँ या हॉर्स राइडिंग करता हूँ। Oh yeah, I've heard you've got Everything. I got rally, I got 2 big runnings, and then 650 and all. Yeah, horse riding I do if I'm in Jamshedpur. Then, so I have to get up at 4 to finish all this. Then I practice my guitar every day. That is something new. I guess a lot of people would not know. So I play the guitar a lot. All right. I mean, I used to play a lot when I was young. A lot. College वगैरह में, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। फिर कोविड के समय, but guitaring is something you never forget. But now I practice guitar every day professionally. 30 minutes, 25 minutes a day, 30 minutes a day. बाकी समय पॉलिटिक्स हो या रीडिंग, हम कोशिश करते हैं हफ्ते में एक किताब खत्म करने का। तो मेरा सोशल लाइफ ज़्यादा नहीं है, पॉलिटिकली है, बट सोशली मैं वैसे पार्टी वार्टी में बहुत कम जाता हूँ। Great. Any favorite food joint? Jamshedpur is known for street foods. So higher end, I like alcohol. Okay, yeah. The restaurants it serves the best food. It serves one of the best. So some of the stuff, like I think I like some of the stuff in novelty. Yeah. Like that. So do you eat non-veg? I eat non-veg. So I guess novelty is the best butter. Very good butter chicken. Their paneer is very good. पनीर भी बहुत बढ़िया बनाते हैं। बेल्डी क्लब में कुछ चीज़ें अच्छी है, जैसे फ्राइड चिकन, चिकन हालांकि वगैरह बेल्डी में ठीक है। निमाई चाट है यहाँ पर, जो सिरगोरा में आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन एक लड़का है, उसके पिताजी चलाते थे, वो समोसा को तोड़ करके चाट बनाता है, वो अच्छा है। अलग अलग रोल्स की दुकान भी बुरा नहीं है। सनगर में बहुत बढ़िया रोल्स की दुकान है। सो स्ट्रीट फूड में और कोई बढ़िया जगह, रेस्टोरेंट, अब तो सर कल्चर भी चेंज हो रहा है। लॉट ऑफ lounges are opening, for which probably is making youth a little excited. Now they have a place to go. यार Saturday है, you hardly get reservations these days. So that's a good thing. But one favorite place where anyone can find you, whenever it is possible. I mean, कहाँ पे हम आपसे catch up कर सकते हैं without any appointment? Sorry. फिर तो घर ही है। Okay. Because मैं सोच नहीं सकता, मैं ऑर्डर ऑनलाइन कर लेता हूँ या बुला देता हूँ, रेस्टोरेंट में खा। I go to the Anand Bhavan once in a while for dosa.
The one in Vegetable? Vegetable. Okay. फिर लोयला के सामने एक डोसा वाला है. Jachan. Okay, that's my favorite too. So वो बहुत बढ़िया डोसा है. डोसा किंग was very good at one time. अभी पता नहीं क्या The one है. और फ्रैंक्स का जो चाइनीज है बुरा नहीं है. they serve the best Very good. gravy noodles. Yeah. Franks is not bad. Then those are some other joints, but छप्पन भोग कुछ समझ ये कचौड़ी वचौड़ी के लिए ठीक है. Right. That's pretty interesting, don't you think, guys? So this is something, that I guess sir has not shared with anyone else. Yeah, no, So we feel privileged. All right. So sir, एक message जो आप youth को देना चाहोगे. And before we end this conversation, sir, I forgot one last point, and I'm sure, I'm pretty emotional about it. आपने रतन टाटा जी के साथ closely काम किया है, right? So probably anything that you would like to tell us about him. तो रतन टाटा जी का एक सिंपल स्टोरी है. दो स्टोरीज एक्चुअली. एक तो मेरा छोटा बेटा, हम लोग का टाटा सीनियर ऑफिसर्स का डिनर था नीली Club में. डायरेक्टर्स बंगलो में, जस्ट डाउन द रोड. यहाँ पर सीधा रोड जाएंगे फर्स्ट हाउस. Okay. तो मेरा छोटा बेटा 4 साल का होगा. घूमते घामते टाटा साहब के पास पहुंच गया और हाथ उठाया और बोला कि आई एम शांतनु. रतन टाटा नीचे बैठे, खड़े होते हुए जैसे झुकते हैं ना, और घुटने पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि नील किया थोड़ा, और बोला कि हम रतन टाटा. So that's how he was. दूसरा है कि मैंने अपने आंख से देखा है. एक हमारे मिस्टर रावल था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाटा मोटर्स. उनका बाईपास हुआ था, तो विदेश में हम कोई एयरपोर्ट में थे, तो सामान आई. रावल साहब का बैग हम लोग को उठाने नहीं दिया, अपने उठा करके ट्रॉली में डाल. उन्होंने जिंदगी में टाटा साहब ने अपना बैग किसी को नहीं दिया. हाँ. कभी नहीं. Never. That is one thing, I guess, इसीलिए, he is considered everyone's idol, we all love him. Like, He's an incredible, and more important is fantastic integrity, right. and not money only, intellectual, जैसे कि कोई कॉम्प्रोमाइज की बात ही नहीं होती थी उनके साथ. कहीं पर भी नो ग्रे, इट वाज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट. Right. Pretty humble. I would say. Amazingly humble. Amazingly humble. Right. That is good to know. And probably now that he's not there, so we really miss him. We need more people like him. Absolutely. And honestly, if you ask me, I see, a little bit of him in you. I learned a lot from him. Yeah. I learned how to dress properly because of it. Because what used to happen was हम लोग जब थे तो हमारा कलर कॉम्बिनेशन एकदम उल्टा होता. तो उन्होंने हमको एक बार चुपके से एक किताब दिया ऑन ड्रेसिंग. बोला कि it will be interesting to read. Ajay, just have a look. But that book was fantastic. It was one of the best books for dressing. Color combination, what should be there. So he was very subtle. He was a... देखिए, लोग को नहीं मालूम है, लेकिन टाटा कंपनी में कोई भी प्रोजेक्ट अगर 1000 करोड़ से ऊपर होता था उस जमाने में, तो टाटा साहब उस मीटिंग में बैठते थे और एक ही सवाल होता. फर्स्ट क्वेश्चन वाज, भारत को क्या फायदा होगा. Right. Like we've heard amazing कोई story company about Pakistan asking for Tata Sumos, which he declined. So I hope that is true, because this So is one thing with Mr. Tata was, he was a great nationalist, yeah, for sure. yes, 100%. But he was also a very kind man. Right. Very, very kind. 9/11 में जो पाकिस्तान के लोग ने हमले किए थे, तो वो आदमी जो है पूरा समय कोने पर खड़ा रहा ताज होटल. Oh. He didn't leave the spot for that 12-14 hours. He stood there till the end. At that point of time, even I was in Mumbai. He stood till the end. That's remarkable. That's great. ठीक है सर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे because I know you have your campaign going on and you have to get up early and it's already quite late.
So thank you so much for joining us. And one last message to the youth of Jamshedpur, or in fact, the youth of Jharkhand, that you could share. So आप सब लोग के लिए एक ही मैसेज है कि राजनीति में अच्छे लोग को चुनिए, कोई भी पार्टी के हो, क्योंकि राजनीति में इतने खराब लोग आ गए कि वो मेजॉरिटी हो गया और उसके चलते इस देश के नौयुवक हो या जनता हो वो परेशान है। तो कहीं पर भी होंगे, जब भी आपको मौका मिले सही लोग को चुनिए और सही काम के लिए चुनिए, तो अपने देश ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। Right. Just to add on, this is what I shared in the morning as well. Don't vote for the party, vote for the right person. Right. So, आपको Thank you. जो भी candidate अच्छा लगता है, who can really help your area grow and make it even better, just go for it. So, Jai Hind. Thank you.